Okay, we are recording the session and you should be able to see my screen now. Can you all see my screen? Yes. All right. So जो हम लोग कोर्स करने वाले हैं उसका नाम है मास्टरिंग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. Okay? Or SQL is what you call it. Okay? Okay. Guys, please be on mute if you're not speaking. It will get recorded. Everything you say will get recorded. So please be on mute. All right, perfect. All right. So just give me a second. I think I So before we deep dive, let's learn a little bit about our institute FCKS. Okay, FCKS was started by Russell around 10 years back from now. Uh, Here are some of the advantages of learning at FCKS. FCK stands for Achieving Freedom by Creativity and Knowledge Sharing. So as name goes, our focus is on knowledge sharing and helping you be more creative. Our focus is not to instruct and complete the course. We definitely value your dreams and goals, and our focus is to help you constructively to go and achieve them. Okay. All our trainers, including myself, are industry expert. All of them are currently working. All of them have industry experience in the area that they are training you. So all the courses that you'll see are designed in such a way that it helps you gain knowledge into what you're doing and ways to improve it. So we have used the most simplified method to help you learn. So no matter where you come from, if you come from like IT, science, engineering, good. If you don't come from those domains, that's also completely fine. Uh, so you don't have to worry about if your background is not in IT or engineering or science. Okay, so you don't have to worry about those part also. And our curriculum is research based, designed for each and every industry that you work in, and they are practical applications. Some of these examples that we cover, you'll be able to simply lift and shift to your work. Okay, and हम लोग जो सेशन करेंगे वो इंटरैक्टिव करेंगे. So ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ because this is a live session. So more interactive you all are, more interesting it will be. Okay, and other thing you need to remember is there is no homework, there is no practice work that you have to take home. You'll get ample time to practice within the session. So how it will work is this, right? We'll have some part of theory that we'll cover, and we'll not cover it at one go, we'll cover it in step by step. So we'll cover some part of theory and then you'll get some examples. Okay, so I'll show you how that example work. You'll have to replicate that example in on your own laptop or PC, and that is the way you will be able to practice on those examples. So we'll have 100 plus example that we'll cover throughout this course. Okay, so this little bit about FCKS. Any question before we dive into the SQL or SQL? No. No question? Okay, so let me ask you one. What is SQL? Has anybody heard about it? I mean, you are here to learn, so you know a little bit about SQL, right? So can you tell me what is SQL? Anyone? And wrong answers are okay. There are no wrong answer actually. So go ahead. SQL अगर जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है वही बता दो. You don't have to give me proper definition. जब कोई SQL बोलता है तो आपके मन में क्या आता है वो बता दो. Database. Database. Okay, very good answer. SQL is a standard query language and databases. Okay, good. और एक पर्सन ने आंसर नहीं किया है. So I don't know about it. you don't know about SQL. That's completely Yeah. fine. Okay, Okay. completely fine. Yeah. So let's see what is SQL. It's a structured query language. So SQL is what comes out of it. Widely used in RDBMS, which is a database model. Okay, so relationship database management system or RDBMS. Allow user to query, update, insert, and delete, as well as allow building relationship and functions. Okay, so we'll learn into deep.
deeply about it. Where it is used, it's used mostly into business intelligence, web application, ERP and CRM. Okay, so all these area it is used. So there is no area left where SQL is not used. And it is one of the highly paid profession across the world into any of these three domains. But of course, with these, you need to have some more kind of knowledge. So, for example, I'll give you for business intelligence. Let's say if you want to be expert into SQL with business intelligence, SQL will be 90%, but you need to understand little bit of visualization and database concept as well. Okay. Web application, SQL will be 50%, but you need to understand HTML, JS, Angular JS, and all those stuff. ERP, CRM, you can be just a SQL expert, work 90%, but you need to have little understanding of ERP and CRM as well. Right? So it's used very widely across all kind of jobs, and it is so. In my experience, when I go hiring in the market, SQL is one of the most expensive skill to find and very difficult to find. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं. So this is SQL or SQL. I like to pronounce it SQL because it's the old terminology that was there when IBM, got SQL out. But let's talk about why. Okay, so we're going to talk about who should learn SQL. Okay, so who are all the people that should learn SQL? So as I said, there are three domains, but here are more: analytics team, data scientist, data engineer, data developer, program managers, and administrators. All of these professions will need at certain level SQL. Most of them require a little bit more compared to others. For example, program managers may not require SQL a lot, but they will also need it at certain level. All right, so some of the roles where SQL is important or SQL is important. Now, why should you learn SQL? Now, let me ask you this question. Now, you're joining the course. You definitely have something in mind that why you want to join the course. Can you tell me in like couple of sentences कि आपको SQL सीखने का मन क्यों हुआ? So why are you into this demo session? Why you want to learn SQL? Anyone can start. That's completely fine. And random thoughts are okay. Go ahead. डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए सर. Database management के लिए. Okay, very good. So I'm working in a data management team. So for that, I'm joining the. Okay. All right. So you're working into data management team. This is the one skill that will help you get to the next level, right? Okay. Yeah, yeah. Okay. All right. What about okay. Everybody spoke? All right. So let me tell you some of the reasons why you should learn SQL. SQL क्यों सीखना चाहिए मैं बताता हूँ आपको. All right. एक must have for many future role, जैसे मैंने आपको कुछ roles दिखाए वहाँ पे. स्पाथ फॉर डेटा साइंस, अगर जो आप डेटा साइंस करना चाहते हैं तो डेटा आना बहुत ज़रूरी है, और अभी भी अपना काफ़ी डेटा जो है वो RDBMS फॉर्मेट में होता है जो आप डेटा साइंस के लिए यूज़ करते हैं. उसके बाद में इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी ये सीखते वक्त. इट हैज़ अ वाइड एप्लीकेशन. इट विल हेल्प यू रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम. अगर जो आप डेटा मैन्युअली एक्सट्रैक्ट करते हो एक्सेल में उस पर वर्क करते हो, so it will take a lot of time compared to if you do it using SQL. It will increase your accuracy. डेटा जो है जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो SQL से, डेटा जो है काफ़ी करेक्ट आता है compared to when you do manual filters in Excel, because the data is huge, so you spend lot of time and that impacts your accuracy as well. Of course, it will save time and money as accuracy and increase and that is reduced. हेल्प यू प्रोग्रेस इन करियर, जैसे अभी हमें बताया एक हमारे स्टूडेंट ने, और आपको मोर एम्प्लॉयबल भी करेगा बिकॉज SQL इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड स्किल among data science, data analysts, data engineer, database managers, web developers. All of these must have SQL. SQL is kind of, uh, I would say, salt these days in some of these roles. Okay. And of course, some of you may have seen some of the job opportunities or focus area where you want to apply in future.
So it will definitely make you more employable for those roles. All right, so you will be able to definitely progress into your careers that you're looking for. So those are the reasons you should learn SQL. And let's talk about what will you learn. Okay, so these are 5 points that you'll learn. You'll learn about database. Learn to query in Access, MySQL, and SQL Server. So there are 3 different databases. Okay, we'll mostly spend time on Access, but we'll also learn MySQL and SQL Server. You'll learn DDL, which is data definition language, defining the structure, creating, altering, deleting tables, establishing relationship. That all falls into DDL. DQL is basically query language. So it's part of SQL, but they are different areas. So you learn how to select, filter, sort, group, append, merge, pivot, create pivot tables and subqueries using DQL. You'll also learn data manipulation language uh, to manipulate stored data. You can create, alter, drop table, etc. Stored procedure functions, UDF, CTAS, or create table as a select. So all those things you will learn, and these some of the words probably you may find are a little bit uh, new to you, something that you're not familiar with. The reason we are using these words is this is something that you'll see into your interviews as well, right? So हम लोग ऐसे words की आपको आदत लगाने की कोशिश करेंगे जो आप अगर जो किसी इंटरव्यू में जाते हो या किसी से बात करते हो जो डेटा इंजीनियर है या डेटा साइंटिस्ट है, they will feel that you have the knowledge of this everything, right? So इसलिए कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखते हैं कि लाइक ये तो कभी मैंने सुना नहीं है, राइट? बट जब आप सीखना शुरू करोगे ये काफ़ी आसान चीज़ है, राइट? एनी क्वेश्चन की मुझे और क्या सीखने मिलेगा और क्या कवर होगा? एनी क्वेश्चन अराउंड इट? एनीवन क्वेश्चंस? Hi, sir. बोलिए. We do scratch at zero से start, right? Yes, we'll start at the very basic. Okay, so you don't have to worry about anything. If you have a little bit knowledge about data, like what data is good. If you don't have, don't worry about it. Uh, you should know how to type and how to open application. That's the basic knowledge. उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता है तो चलेगा. Yeah, okay, completely fine. Thank Huh? you. All right, no problem. Anyone else? Any other questions? Anyone? All right. Okay. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते फिर हम. Okay. So another thing is why you should learn now. All right. So मुझे ये बताइए आप में से कितने लोगों ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले या मे बी 1 वीक पहले डिसाइड करा कि सीक्वल सीखना है और यहाँ पे आ गए आप लोग क्लास में? कितने लोग हैं ऐसे? या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि आई लर्न अ मंथ बिफोर, या 2-3 महीने से सोच रहे हैं या 4 महीने से सोच रहे हैं? कितने लोग हैं? चलिए केतन को पूछते हैं. केतन, आपने कभी डिसाइड किया था कि आपको सीखना है एसक्यूएल? लास्ट वीक सर. लास्ट वीक. ओके, आप बहुत प्रॉम्प्ट हाँ. हो. यूजुअली अगर जो मैं होता तो मैं सोचता कि सीखना है 1 साल पहले और आज ज्वाइन करता. हाँ नहीं, सुबह. लास्ट वीक रजा सर की बैच खत्म हो गई ना, उसके बाद हाँ. डिसाइड किया. ओके, वेरी गुड. बीआई की बैच खत्म होने के बाद. ओके, वेरी गुड. फाइनली खत्म हो गई. वेरी गुड. ओके. मुझे पता चला कि काफ़ी लंबी चली है वो बैच. रजा सर बोल रहे थे काफ़ी अच्छे अच्छे न्यू एग्जांपल्स कवर हुए करके. हाँ, ऑलराइट. लास्ट जुलाई में चालू हुआ था, मार्च में एंड हो गया वो. ओके. सुलभा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए. हाँ, मैं पिछले 1 साल से ट्राई कर रही हूँ उसको सीखने की. मेरे बन गई. ओके. ऑलराइट. निखिल, आप बताइए. We मतलब a month before. 1 month बिफोर.
ओके, सो काफी बार yes. ये हो जाता है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि सीखना है करके, बट हम लोग कर नहीं पाते, राइट? सो देखिए, दीज आर सम ऑफ द रीजंस यू शुड स्टार्ट नाउ। एक तो डेटा बूम अभी भी चल रहा है। रिक्वायरमेंट टू डीग एंड मैनेज डेटा इज इंक्रीजिंग, मतलब जो लोग अपना जो डेटा है इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, right? There are some numbers that we can dig into, but we'll talk about it later. But data is expanding, and with that, people who can query data, extract data, and manipulate data, they are needed. So उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। और दूसरी चीज़ ये है रिस्क ऑफ लैगिंग बिहाइंड। सो होता क्या है, काफ़ी बार हम सोचते हैं कि नहीं यार चलो, ये मेरी टीम में एक बंदा था या बंदी थी, उन्होंने सीक्वल सीख लिया, नाउ दे आर बिकमिंग एक्सपर्ट, राइट? दे गॉट अ जॉब दैट यू वांटेड। सो हम लोग सोचते रहते हैं, बट कुछ करते नहीं उसके बारे में। सो अभी सीख लो, सो बेटर रहेगा। अगर जो आप डिसाइड करो कि नहीं चलो यार 3 महीने बाद लगाता हूँ, तो वो आगे बढ़ता जाएगा, राइट? केतन को मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा, केतन की। केतन ने कल सोचा, लास्ट वीक सोचा, और आज वो क्लास में है। सो वेरी गुड केतन, कुडोस टू यू। हाँ, थैंक यू सर। ओके, ऑलराइट। सो चलिए थोड़ा सीक्वल देख लेते हैं एक्शन में। ओके, मैंने बहुत बेसिक सेटअप किया हुआ है आज, बट जब हम लोग सीखना शुरू करेंगे थोड़ा एडवांस सेटअप हम करेंगे। मैंने बस एक सीक्वल डेमो फाइल बनाया हुआ है और उसके अंदर कुछ डेटा अपलोड किया हुआ है। सो ये अपना एक्सेस है। हम लोग मोस्टली इस पे फोकस नहीं करेंगे। विल हैव एन एप्लीकेशन और विल यूज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू लर्न विच विल बी easier, right? And it will give you an option or opportunity to switch between different databases without installing them, right? Installation वगैरह हम देखेंगे, बट कैसे होता है, ये बड़े सर्वर्स होते हैं, our laptop may not mostly support it well, right? So we'll learn some of those, but our focus will be on actually querying the data, all right? So for example, देखो मैं अभी यहाँ पे जा रहा हूँ क्रिएट में, और यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं हम, क्वेरी डिजाइन बोला हुआ है, तो ये व्यू आ जाता है। हम इसको SQL व्यू में स्विच कर देंगे। We'll start with select. Select start from sheet 1. Okay. So जो स्टार होता है, दिस इज कॉल्ड अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। स्टार मीन्स ऑल। ये हम डिटेल में सीखेंगे, और इसको जब हम रन करेंगे हमें पूरा का पूरा जो डेटा है शीट 1 का आ जाएगा। देखो यहाँ पे अपना क्वेरी 1 लिखा हुआ है, राइट? इसको हम अगर जो सेव करते हैं क्वेरी 1 करके, तो यहाँ पे ये आ जाता है। सो दिस इज आवर शीट 1 एंड दिस इज आवर क्वेरी 1। तो देखो काफ़ी सिंपल होता है ना। अगर जो मैं यहाँ पे इसको मैं अभी सिक्वल व्यू में डाल देता हूँ, सिंपल कमांड, राइट? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम शीट 1। सो जैसे आप इंग्लिश में बात करते हो ना, काफ़ी बार वैसे ही लगती है सीक्वल। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोलना है कि बैग में से लैपटॉप निकालो, तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? इफ़ यू वांट टू आस्क समवन, अभी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, रुकिए। अगर जो आपको किसी से पूछना है कि बैग में से लैपटॉप निकाले, तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? यू से रिमूव और गेट लैपटॉप रिमूव यूर। फ्रॉम बैग, है ना? हाँ, सो यहाँ पे रिमूव की जगह सिलेक्ट होता है। सो यू विल जस्ट टाइप लाइक दिस, सिलेक्ट लैपटॉप फ्रॉम बैग। इसमें क्या हो जाता है, बैग इज अ टेबल एंड लैपटॉप इज अ थिंग्स दैट यू वांट। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे बोला सिलेक्ट एस्ट्रिक, मतलब सब कुछ निकाल लो, बैग को एम्प्टी कर दो, ऐसे बोला। बट लेट्स से हमें कुछ स्पेसिफिक चीजें ही चाहिए, राइट? सो चलो मैं एक नई क्वेरी क्रिएट कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे सिक्वल व्यू में हम आ जाते हैं, हम बोलते हैं कि भैया सिलेक्ट, चलिए अपन देखते हैं अपने उसमें क्या क्या है। शीट 1 में जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पास में ऑर्डर आईडी है, राइट? सो हम लोग ऑर्डर आईडी में कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा हूँ फ्रॉम शीट 1, ओके? और इसको हम यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन में जाके रन करते हैं। इसके शॉर्टकट कीज भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट देखो हमारे पास में भी क्या आया, सिर्फ ऑर्डर आईडी आया। सो हमने क्या कहा इसको, क्वेरी को हमने कहा कि भैया सिलेक्ट ऑर्डर आईडी फ्रॉम शीट 1। सो शीट 1 में से ऑर्डर आईडी निकाल के लेके आओ। सो काफ़ी आसान होती है समझने के अंदर लैंग्वेज, राइट? चलिए इसके अंदर हम सिटी डाल के देते हैं। सो ऑर्डर के साथ हमें सिटी भी चाहिए, तो हमने कॉमा सिटी कर दिया। अभी हम रन करते हैं।
तो देखो हमारे पास में सिटी आ गई और ऑर्डर आईडी आ गया, है ना। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आगे की क्वेरी भी समझाता हूँ इसके अंदर। सो हमने बोला कि हमें सिटी चाहिए और ऑर्डर आईडी चाहिए। अभी हम बोलेंगे कि भैया हमें सिटी चाहिए जहां पे सिटी का जो नाम है इट इज इक्वल टू लेट्स से समथिंग, राइट। सो ये इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? सो विल गो बैक टू आवर बैग एग्जांपल। हमने क्या बोला? सिलेक्ट लैपटॉप फ्रॉम बैग या फिर गेट लैपटॉप फ्रॉम बैग। नाउ आपके लैपटॉप, आपकी जो बैग है उसके अंदर दो लैपटॉप रहेंगे, एक ग्रीन वाला एक रेड वाला, और आपको रेड वाला चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे? आपकी बैग है, दो लैपटॉप है, एक ग्रीन Please है एक। remove the red laptop. प्लीज रिमूव द रेड लैपटॉप। ओके, अभी इसको थोड़ा पैसिव वॉइस में बोलना होता है क्योंकि सीक्वल इज मोर ऑफ अ पैसिव वॉइस, बिकॉज यहाँ पे देखो सिलेक्ट वगैरह पहले आ रहा है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? और आप प्लीज प्लीज लगा रहे हो, सीक्वल को प्लीज बोलने की जरूरत नहीं होती, बट गुड यार। ओके, सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? सिलेक्ट लैपटॉप फ्रॉम बैग वेयर कलर इक्वल्स टू रेड। इसी तरीके से इसके अंदर अगर जो मुझे बोलना है कि सिलेक्ट ऑर्डर आईडी एंड सिटी फ्रॉम शीट 1 where city equals to, let's say there is a city called कौन सी सिटी? सियाटल ट्राई करता हूँ मैं, सियाटल। ओके, अभी इसको मैं रन करता हूँ। सो देखो सिटी कौन सी यहाँ पे आई मेरे पास में? सिर्फ सियाटल आया हुआ है ना। सो इस तरीके से ये काम करता है, आसान है ना। अगर जो आपको दो सिटीज चाहिए, लेट्स से यू वांट टू सिटीज, सियाटल एंड लेट्स से और, सो आप क्या बोलोगे? अगर जो आपको लैपटॉप कोई भी लेके आप बोलना है आपको, बट आपको कलर स्पेसिफाई करके बोलना है, तो आप बोलोगे कलर रेड और ग्रीन। सो यहाँ पे बोलना पड़ेगा और सिटी इक्वल्स टू, सो एक और सिटी है मेरे पास में, इस तरीके से व्हेन यू रन इट विल गेट ओरेम और सिएटल, मतलब दोनों होगा तो दोनों में से एक आपको मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कैसा लग रहा है अभी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes. यस, ओके। Yes. अब Yes. अभी देखो एक और क्वेरी हम क्रिएट करते हैं, थोड़ी सिंपल वाली करते हैं और से। ओके, यहाँ पे इसको सीक्वल में जाते हैं। सो देखो मैंने जो आपको दिखाया अभी तक के, दैट वाज अबाउट एक्सट्रैक्टिंग डेटा। हम डेटा निकाल के ला रहे थे। अभी हम डेटा की सम भी कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सिलेक्ट सम, ओके, किसका? सेल्स का। सेल्स करके कॉलम अपने डेटा में, ओके, फ्रॉम शीट 1। इसको हम करते हैं रन और हमें टोटल सेल्स जो है वो आ गया। बट देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है? XPR 1000। सो ये क्या होता है? एक्सप्रेशन का नाम उसने अपने आप दे दिया। अगर जो हम चाहे कि कुछ और लेके आए, ये XPR 1000 की जगह कुछ और लेके आए, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सेल्स एज, लेट्स से टोटल सेल्स। इसको हम करते हैं रन। सो देखो ऊपर टोटल सेल्स लिख के आए। सो ये हो गया एक समेशन का एग्जांपल। ओके, यहाँ पे आप जो दे रहे हो उसे कहा जाता है सूडोनेम, ओके, और कंसीडर नेम। सो ये भी आप कर सकते हो, ये भी हम सीखेंगे। बट लेट्स से इसको हमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करना है। सो लेट्स से हमें इसको यहाँ पे सिर्फ टोटल सेल्स आ रहा है। लेट्स से हमें इसको बाय कुछ डिटेल्स लेके आना। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि सेगमेंट करके मेरे पास में एक है। सो मैं इसको सेगमेंट से लेके आता हूँ सेल। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, बोलता हूँ कि भैया ग्रुप बाय सेगमेंट, और देखते हैं इसको रन करके कि रन होता है क्या। इसको रन करेंगे। सो ये आ गया। बट इसके अंदर वो जो हमने ग्रुप बाय सेगमेंट किया था वो नाम नहीं आया, वैल्यूज आ रही है, नाम नहीं आया। सो हम यहाँ पे सेगमेंट को पहले डाल देंगे और कॉमा दे देंगे। अभी देखो रन करते हैं। तो देखो आ गया हमारे पास में सेगमेंट आ गया और उसके हिसाब से टोटल भी आ गया, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट वेरी सिंपल डेटा एक्सट्रैक्शन। और कितना टाइम लगा इसको? फ्यू सेकंड्स,
राइट, एंड योर डेटा वाज एक्सट्रैक्टेड। अभी यहाँ पे हम सेगमेंट की जगह अगर जो हम लिखते हैं लेट्स से कस्टमर नेम, राइट, कस्टमर नेम, तो हमें कस्टमर के नाम के हिसाब से भी डेटा मिल जाएगा, बट ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर जो मैं इसको चाहूँ तो मैं थोड़ा सा इसको कम कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, लेट्स से पहले वाले 5 उठा देता हूँ, तो आई कैन जस्ट से टॉप 5, ओके, और ये टॉप 5 आ गए। बट ये देखो, ये वैल्यूज़ कौन से बड़े कौन से छोटे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सो मैं यहाँ पे फिर बोल सकता हूँ कि भैया ऑर्डर बाय सम ऑफ सेल्स जो हमने दिया हुआ है ऊपर वही, ओके, और डीएससी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है। उसको हम रन करते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज की जगह ऑर्डर वीटी कर दिया मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक्स, और ये आपको ऑर्डर्ड मिलेगा। अभी ये देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर है और छोटी नीचे है, राइट। सो ये बहुत बेसिक क्वेरीज हमने देखी थी। सो यूजुअली क्या होगा, इसी तरीके से मैं क्वेरी आपको एक्सप्लेन करके रन करूंगा, ओके। और सीक्वल इज अ लैंग्वेज, सो इसीलिए जब आप देखोगे मैंने इसको रेफरेंस दिया था इंग्लिश लैंग्वेज का कंपैरेटिवली, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर जो आपको सीखना है, अच्छे से मास्टर करना है उसके अंदर, तो आपको वो बोलते आनी चाहिए। इट इज अ लैंग्वेज, यू शुड बी एबल टू स्पीक इट, एंड टू स्पीक इट यू नीड टू अंडरस्टैंड इनटू योर नेटिव लैंग्वेज और द लैंग्वेज दैट यू स्पीक, okay. So it has to be compared with it. That's why I give you example of bag and laptop. All right. So इस तरीके से ये काम करता है. Any question on what you have seen so far? Okay. So चलिए मैं आपके थोड़े लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में आपको बता देता हूँ कि कैसे रहेगा. आपको डेटा हम प्रोवाइड करेंगे. So I'll send you data in advance or at the day of the class I'll send you the data. After that, what will happen is once you get the data, we'll be online. I'll show you how to connect इसकी, उसको कनेक्ट कैसे करना है, जो भी डेटाबेस हम यूज़ करेंगे उससे एक्सेस हो सकता है, या ऑनलाइन कोई पोर्टल हो सकता है, या फिर हम माई इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे हम कनेक्ट करेंगे। फिर मैं आपको एक क्वेरी करके दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेरी कैसे काम कर रही है, उसको हमने लिखा इस तरीके से क्यों है, और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। फिर आप लोग उसको ट्राई करोगे और आप लोग समझोगे, फिर हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे और सेम चीज़ रिपीट होगी, ओके। सो ये आपका लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। कभी कभी हो सकता है कि आप बोलो कि सर आज कुछ अलग करना है, हम लोग को क्वेरी करने का मन नहीं है, मेरे ऑफिस में एक इशू चल रहा है, मुझे वो सॉल्व करने का है, कैन यू हेल्प मी विद दैट। सो आप लेके आओ डमी डेटा के साथ में, और हम लोग उसको क्लास में सॉल्व कर लेंगे। सो इससे क्या होगा, सब स्टूडेंट सीखेंगे भी, प्लस जो स्टूडेंट क्वेरी लेके आए उनकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाएंगी। सो ये भी हम करेंगे। ऑलराइट, सो ये आपका लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। अभी नेक्स्ट चीज़ की अगर जो मैं बात करूँ, तो इसकी जो फीस है वो है 12,000। अगर जो आप एक साथ पेमेंट करते हो तो आपको 10,800 पे करना होता है, 2 इंस्टॉलमेंट में करते हो तो 6,000 पे करना होता है। पेमेंट मेथड्स यहाँ पे दी हुई है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। एक मिनट मुझे दीजिएगा गाइस, ओके। हाँ, सो पेमेंट मेथड यहाँ पे दी हुई है। मैं ऑडिबल हूँ राइट आप सबको? Yes. ओके, Yes. सो वंस आपका Yes. रजिस्ट्रेशन हो जाए, Yes. उसके बाद में आपको क्लास अटेंड करनी है एवरी वीकेंड 9 to 12, 3 से 4 महीने चलेगा। 100 से ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। सो अटेंड करना है, मिस नहीं करना है। बट लेट्स से अगर जो आपने क्लास मिस कर दिया तो क्या होगा, अगर जो आप क्लास मिस करते हो तो एवरी क्लास के स्टार्टिंग में 15 to 30 मिनट्स विल फोकस ऑन रिविजन ऑफ व्हाट वी आर लर्न ओनली, ओके। सो अगर जो आपका एक आधा क्लास मिस हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। अगर जो आपने 3-4 क्लास मिस कर दिए, सो ऑलमोस्ट महीना आप लोग नहीं आ पाए, सो क्या होगा, नेक्स्ट बैच जब होगी उसके अंदर आप विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉस्ट यू कैन अटेंड दोज मिस्ड क्लासेस, ठीक है। तो इस तरीके से कवर हो जाएगा आपका, कुछ मिस नहीं होगा। मुझे 1 मिनट दीजिएगा गाइस, कोई स्टूडेंट का कॉल आ रहा है।
Hello? Yes, sorry guys. Okay. After that, you'll have a free of cost certification exam from AFCKS. You can also join some of our support groups and forums जहाँ पे job post होते रहते हैं. नए एग्जाम्पल्स आपको मिलते रहेंगे वहीं पे, आप उसको ट्राई कर सकते हो. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो अगर जो आपको कोई फ्यूचर गाइडेंस चाहिए तो. एक बार आप सर्टिफिकेट आपने कंप्लीट कर लिया, यू नीड टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट एंड स्टार्ट अप्लाइंग और लुकिंग फॉर द जॉब दैट विल हेल्प यू इम्प्लीमेंट इट. सो जब हम लोग बोलते हैं कि अप्लाई फॉर योर ड्रीम जॉब, हमारा मतलब ये होता है कि कोई ऐसा जॉब ढूंढो जहाँ पे आपने जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ. ओके. और उसके बाद में कंटिन्यू लर्निंग, क्योंकि स्किल्स बढ़ाना हमेशा काम में आता है. सो नई नई चीज़ें आपको सीखते रहना है और उसके अंदर आगे बढ़ते रहना है. ठीक है. ओके. एनी अदर क्वेश्चंस? सर हाँ बोलिए. क्लासरूम में होगा ये सेशन या घर पे बैठ के ऑनलाइन? घर पे बैठ के ऑनलाइन है ये सेशन. पूरा और संडे का? पूरा, हाँ, सिर्फ संडे एक ही दिन है. हाँ वही पूछ. बट पूरा दिन नहीं है, सिर्फ 9 से 12 बजे तक. क्लासरूम में आना पड़ेगा या घर से ही? नहीं नहीं, घर से ही करना है. बट लाइव सेशन है तो ऑन डिमांड नहीं है, तो 9 से 12 के बीच में ही ज्वाइन करना है आपको. एक प्रॉब्लम होगा ना, वो हाँ स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो ठीक हाँ. से नहीं दिख. अच्छा, ये अभी आपको ठीक से नहीं दिख रही है क्या? हाँ मुझे छोटा दिखता है, मोबाइल पे चलते हैं अभी. हाँ तो वो मैं सॉल्व कर दूंगा, डोंट वरी, मैं उसको बड़ा कर दूंगा आपको. है ना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, वो प्रॉब्लम अपन सॉल्व कर लेंगे. और कुछ क्वेरी आई तो फिर कैसे क्वेरी पता आए तो आप चलेगा? अनम्यूट करके पूछ ले सकते हो. नहीं नहीं, ऐसे ऑनलाइन सेशन पे ये हम्म. कैसे हो, थोड़ा आप, डाउट है. ओके, लेट्स से आपको क्वेरी है, ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हो. ओके. और पूछ सकते हो कि ये मुझे क्वेरी है, मुझे हेल्प करो सॉल्व करने में. ठीक है. ठीक है. ओके. और ये जो स्क्रीन के फॉन्ट्स वगैरह ना वो बढ़ जाता है, डोंट वरी, उसको बड़ा कर सकते हैं. अभी छोटा किया हुआ है वो, तो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा देखने में, बट वो बढ़ जाता है. ओके. गुड क्वेश्चन, बट एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? चलिए मैं ये स्टॉप करता हूँ. और ये जो रिकॉर्डिंग